Good morning. Welcome to my class again. So, first theorem we did is BPT, then it was converse of BPT, then similarity of criteria of similarity, then yesterday we did was areas of similar triangle. That theorem is also very important. So, next another theorem is that is Pythagoras theorem. It is also very important. So, आज हम Pythagoras theorem करेंगे और कल इसका रिवर्स ऑफ Pythagoras कन्वर्स ऑफ Pythagoras theorem करेंगे. फिर ये हमारा कंसेप्ट वाइज चैप्टर इज फिनिश्ड. बाकी रेस्ट विल बी ऑन द प्रॉब्लम. जितने आप सॉल्व करोगे उतना आसान बनेगा. सॉल्व नहीं करोगे कंसेप्ट लेके फिर कोई मतलब ही ना है कंसेप्ट का. कंसेप्ट हम क्यों लेते हैं? वाई हमको कंसेप्ट चाहिए जस्ट टू गो थ्रू द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. अगर इसलिए मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, ये आप कंसेप्ट यूज करके प्रॉब्लम कर सकते हो. तो मैं आज बता रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट. Pythagoras theorem. So, as you know, in class 6, in class 7, you have got, sir, in right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. That is perpendicular and base. Good. So, that is Pythagoras theorem. But right now, we have to prove this. कि ये कहाँ से आया? तो actually, you know, Pythagoras theorem is in case of right angle triangle. Suppose this is the right angle triangle. In case of right angle triangle, if you denote the perpendicular as P, a base as B, and hypotenuse as H, then square of hypotenuse square equal to the square of the hypotenuse. The square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. That is H square equal to P square plus B square. This is the Pythagoras theorem we have got. So same is the Pythagoras theorem in class 10 also. This is the same theorem as we got in the 6th and 7th standard junior classes. But here we need the explanation कि ये आया कहाँ से. ये प्रूफ मैं बता दूंगा आपको आया कहाँ से, कोई बात नहीं. तो ये Pythagoras theorem शुरू करने से पहले आपको, that means हम ये स्टडी कर रहे हैं किसमें? सिमिलरिटी ट्राइंगल में. Right now we are studying this Pythagoras theorem in class 10 in the chapter similar triangles. So obviously आपको the first thing that comes to your mind is that the Pythagoras theorem will have to be proved by the criteria of similarity. जो हमने आपको बताया था वो यूज करके करना होगा. दैट इज वाई सिमिलर ट्राइंगल्स वाला चैप्टर में ये पोर्शन इंक्लूडेड है हमारा 10th के किताब में. तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स इसमें यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम. दैट मीन्स ये प्रूव करने के लिए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये प्रूव करने के लिए एक और कंसेप्ट की जरूरत होगा. द प्री रिक्विजिट कंसेप्ट, यू नीड वन प्री रिक्विजिट कंसेप्ट टू explain this Pythagoras theorem, and that prerequisite concept I am showing you right now. Good. हाँ, तो Pythagoras theorem में prerequisite knowledge ये है, prerequisite concept ये है कि this is a right angle triangle that B. ABC is a right angle triangle, angled at ABC is a right angle triangle angled at B. तो ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए ये कंसेप्ट जरूरी है. कैसा कंसेप्ट है सुन लेना. हाँ, तो अगर ABC एक राइट ट्रायंगल है B पे एंड वी आर ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर ऑन दिस हाइपोटेन्यूज AC फ्रॉम B, सपोज दिस पॉइंट इज D. गुड. तो we have drawn and perpendicular from the point B on the hypotenuse. कोई प्रॉब्लम नहीं. फर्स्ट हमारे पास एक राइट ट्रायंगल था B पॉइंट पे, ABC से राइट ट्रायंगल B पॉइंट पे, फिर B से हमने AC हाइपोटेन्यूज होगा तो उसके ऊपर क्या बना दिया हमने? परपेंडिकुलर बना दिया. अच्छा, तो ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा. व्हाई? बिकॉज ये D वाला तो राइट एंगल है ना, तो ABD इज राइट ट्रायंगल. BDC इज ए राइट ट्रायंगल. दो हो गया. मतलब ये बड़े वाला ट्रायंगल को जो भाग कर दिया था ये क्या बना के? परपेंडिकुलर बना के. तो दो स्मॉल बेटा, इसका मतलब यू कंसीडर इट एज टू स्मॉल राइट ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड राइट नाउ आफ्टर ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट B on the hypotenuse AC, and that main was the parent one ABC triangle. That is also a right triangle. And after drawing a perpendicular from point B on AC, again we have got two more right triangles. One is ABD, one is DBC. ABD is right triangle at D, BDC is right triangle at D.
सो ये कंसेप्ट ये है कि ए बी सी बड़ा वाला राइट ट्रायंगल, ए बी डी स्मॉल वाला राइट ट्रायंगल और बी डी सी स्मॉल वाला राइट ट्रायंगल, हमको 3 राइट ट्रायंगल मिल गया। मेन बड़े वाला था जो पहले दिया था, अब ये बनाने के बाद 2 और बनेगा। तो तीनों राइट ट्रायंगल सिमिलर है आपस में, ये स्मॉल वाला से है, ये स्मॉल वाला ये बड़े वाले से है, ये स्मॉल वाला ये बड़े वाले से है। गॉट इट ना? कहां से आया वो बता देता हूं। दैट कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स in a right triangle, if you draw a perpendicular from the opposite vertex to the hypotenuse, then there are 2 small right triangles formed. As a whole, 3 right triangles we have got, that parent one and these 2 small one, and that 3 right triangles are similar to one another. That is the main concept. तो कहां से आया बता देता हूं, फिर मेन कंसेप्ट में जाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम में। तो दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए दिस इज द प्री रिक्विजिट कंसेप्ट, आपको इसलिए बता देता हूं, फिर करूंगा समझ में आएगा। तो ये कहां से आया समझ लेता हूं, समझ लो। तो हमने क्या क्या, एक तो मेन बड़े वाला था, ये था, सबको बाहर करूंगा। एक मेन बड़े वाला था ए बी सी, एक स्मॉल वाला ले लूंगा ए बी डी वाला, ए बी डी, गुड। मतलब अब ये स्मॉल वाला लिया और मेन बड़ा वाला लिया, दोनों राइट ट्रायंगल। ये दोनों कैसे बराबर है पहले वो दिखा देता हूं, कैसे बराबर होगा। देखो इसका जो बी है इस ट्रायंगल, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसका जो डी है इसका बी का बराबर है 90-90, और ए दोनों में कॉमन है, ए दोनों में कॉमन है। तो बाय ए थ्योरम दिस टू ट्रायंगल आर सिमिलर। तो इसका नेमिंग कैसे होगा, ट्रायंगल, अगर इसका एडी भी लूंगा, इसका ए के जगह पे इसका ए, उस दिन भी नेमिंग गलत हो गया था, क्यों, वो डायग्राम मिटाने पे। सो डायग्राम हमेशा दैट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, विदाउट डायग्राम यू कांट सॉल्व दिस ट्रायंगल क्वेश्चन। तो ए के जगह पे ए ले लिए, डी के जगह पे क्या लिखूंगा, इधर का बी, और इधर क्या गया बी, उधर क्या रह गया सी, गुड। तो दिस इज द सिमिलर ट्रायंगल, मेन बड़े वाला, ऊपर वाला स्मॉल। लाइकवाइज ऊपर वाला और स्मॉल वाला भी कर सकते हैं, कैसे करूंगा देखना। ये मेन ऊपर वाला था ए बी सी, और नीचे वाला कौन सा था, ये था डी सी बी। अच्छा, इसमें क्या क्या है, ये 90 डिग्री है डी वाला, इसमें बी, तो इसका बी भी इसका कौन सा बराबर है, डी का, शाबाश, बी और डी बराबर है। इसका सी दोनों बराबर है। तो ट्रायंगल नाम बताओ, अगर इसका एबीसी दूंगा, ट्रायंगल एबीसी लूंगा बड़े वाला, तो स्मॉल वाला क्या होगा, इसका ए के जगह पे ना पता, अभी बाद में लिखेंगे। बी के जगह पे क्या है, बीच में बी है ना, मिडिल में बी है, इसका मिडिल में डी आना पड़ेगा, गुड। इसका लास्ट में सी है, इसका भी लास्ट में सी आना पड़ेगा। अब रह गया इसका बी, तो बी लिख दो। देखो, तो दैट मीन्स ये भी ये थ्योरम से हो गया। कैसे, ये 90 और ये दोनों कॉमन है ना, ऊपर में ये स्मॉल वाला और इधर पेरेंट वाला में ए कॉमन था दोनों में, और ये नीचे वाला स्मॉल का और मेन पेरेंट वाला ट्रायंगल में सी कॉमन है। और 90-90 तो एक बना ही दिया, इधर बी 90 डिग्री था, परपेंडिकुलर था, और उसमें डी में बना दिया था। तो दैट मीन्स बाय ए थ्योरम दिस स्मॉल वन एंड दैट पेरेंट वन आर सिमिलर। हाउ दिस कम्स, आई हैव शोन यू। सिमिलरली दिस स्मॉलर वन, दैट लोअर वन एंड दैट पेरेंट वन कैसे आया, मैं बराबर दे दिया। अब दोनों स्मॉलर, ये जो स्मॉलर है उसको कैसे सिमिलर होता है वो भी दिखा देता हूं, फिर प्रॉब्लम शुरू करूंगा। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो इधर हो गया हमारा क्या, ऊपर तो रह गया ये, और नीचे रह गया हमारा, इसका नाम है ए डी बी, इसका नाम है डी बी सी। अच्छा, तो बताओ ये 90-90 है दोनों, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी दोनों का, शाबाश। तो ये मेन एबीसी में एंगल बी वाज 90, एंगल बी टोटल 90 था। तो ए कितना होगा, 90 माइनस सी, ये कितना होगा, वाई बिकॉज ए और सी मिलकर कितना है, 90 है। तो बी 90 हो गया मेन ट्राइंगल में, मेन पेरेंट ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में एबीसी में, बी इज 90 देन ए प्लस सी इज 90, दैट मींस देन ए विल बी 90 माइनस सी। ए और सी मिलकर 90, तो ए इज इक्वल 90 माइनस सी। नाउ टेक दिस टू ट्राइंगल ए बी डी एंड बी डी सी। अच्छा,
ए बी डी में ये डी और इसका डी दोनों 90-90 है, परपेंडिकुलर बनाया था, तो ये दोनों मिलकर कितना होगा, ए और बी, ए और बी मिलकर भी 90 होगा, वाई बिकॉज डी इज ऑलरेडी 90, नाउ ए प्लस बी इज 90, गुड। तो अगर a प्लस बी इज 90 है तो b इक्वल टू 90 माइनस ए, b इक्वल टू 90 माइनस ए। अच्छा, सिमिलरली इधर देखो, इस ट्राइंगल में ये कितना है 90, और b प्लस सी कितना होगा, b प्लस सी होगा 90, दैट मीन्स b प्लस सी इज 90, सो b इक्वल टू 90 माइनस सी। अच्छा, अगेन ये बड़े वाला में देखो, b इज 90, a प्लस सी इज 90, a इज 90 माइनस सी एंड c इज 90 माइनस a, 90 माइनस a। उसके बाद देखो ये क्या है हमारा, c के जगह पे हमने क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस a। अब ये दोनों ट्राइंगल देखो, अच्छा ये 90, ये 90, इसका b एंगल इसका c एंगल बराबर है, देखो ये भी 90 माइनस a, ये भी 90 माइनस a, दो एंगल बराबर करने पे तीसरा तो है ही है, तो थर्ड वन लिया ही ना, ए को 90 माइनस बी दिखाए, 90 माइनस सी दिखाया ही ना, तीनों को क्यों दिखाना है, दो की बराबर, ये 90-90 है, ये दोनों बराबर है। तो इसका नेमिंग कैसे होगा, इसका डी, इसका डी, इसका जो बी है एंगल बी, इसका किसका बराबर है, एंगल सी का, और रह गया इसका एंगल ए, इसका एंगल बी। तो इसका नेमिंग कैसा होगा, इसका लूंगा अगर ट्राइंगल डी बी ए, सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी ए लूंगा, इसका लूंगा डी सी बी। ये कहां से आया आपको बता दिया, डी का डी 90-90, इसमें b इक्वल टू 90 माइनस ए, हाँ तो इसका c भी 90 माइनस ए, तो ये दोनों बराबर हो गया b और c, तो ये b के जगह पे इसमें c, a के जगह पे b। सो दिस इज द प्री रिक्विजिट कंसेप्ट यू नीड टू नो बिफोर गोइंग टू दैट पाइथागोरस थ्योरम। तो अब पाइथागोरस थ्योरम आपको मैं बता देता हूं, स्टेटमेंट फर्स्ट बता देता हूं, फिर आपको प्रूफ कर देता हूं। सी, तो फर्स्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट, हमेशा कीप इट माइंड, इफ आपको क्वेश्चन आएगा कि स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, गुड, तो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट। तो स्टेटमेंट में आपको लिखूंगा कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. You can write sum of the squares of perpendicular and base भी लिख सकते हो इसमें other two sides में, और you can write the sum of the squares of opposite and adjacent. Yes, ये other two sides में आप क्या लिख सकते हो, sum of the squares of the perpendicular and base भी लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, in right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides भी लिख सकते हो, sum of the squares of the perpendicular and base भी लिख सकते हो, या opposite and adjacent भी लिख सकते हो। That means this perpendicular is known as opposite and base is known as adjacent in international curriculum. That is why you may use no problem, perpendicular के जगह पे opposite भी लिख सकते हो, base जैसे मतलब ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, राइट ट्राइंगल, राइट एंगल दैट सी। तो परपेंडिकुलर कौन सा है जी, परपेंडिकुलर कौन सा है, ए सी परपेंडिकुलर है, बी सी क्या है, बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कभी बदलते नहीं है, व्हाई, बिकॉज दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ए सी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है, लेकिन अब ये कंसेप्ट भूल जाओ, अब ये नहीं होता, वो 9th तक था कि सर ए सी परपेंडिकुलर होता, बी सी बेस होता, अब ये कंसेप्ट भूल जाओ आप, क्यों, क्योंकि मैं बता देता हूं, इफ यू टेक दिस एंगल, अगर इसके रिगार्डिंग देखोगे बी के रिगार्डिंग, यस, तो इसका ऑपोजिट कौन सा है, ए सी, देन ए सी इज द परपेंडिकुलर,
और इसके साथ जो लगा है बी के साथ कौन सा लगा, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता, वो ए बी हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। और ये बी के साथ जो लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, बेस। गुड। बट इफ यू टेक दिस एंगल, ए के हिसाब से देखोगे उसका ऑपोजिट बीसी परपेंडिकुलर हो जाता, तब ये परपेंडिकुलर एसी परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। हाइपोटेन्यूज विल बी सेम, मैं बता दिया आपको, मतलब ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है एसी, बीसी बेस है, ए एंगल के लिए एसी बेस है, बीसी परपेंडिकुलर है। दैट मीन जो उसका ऑपोजिट होता है उसको परपेंडिकुलर मानता है, जो लगा हुआ रहता है उसको बेस मानता है। दैट इज व्हाई मैं आपको बोला वो लोग फॉरेन में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर को ऑपोजिट बोलते हैं, इसके ऑपोजिट एसी ऑपोजिट, इस एंगल के लिए बीसी ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ, और बेस जो लगा हुआ है, जो एडजेसेंट लगा हुआ है, इंक्लाइंड एडजेसेंट मतलब अटैच जो भी लगा हुआ है, तो ये है। तो अभी क्या है, तो द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आई हैव टॉट यू, दैट इज व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस, एंड व्हाट थ्योरम विल बी यूज्ड टू प्रूव दिस थ्योरम, व्हाट कंसेप्ट विल बी यूज्ड, दैट इज जो 3 वाला थ्योरम बताया था, 3 वाला राइट ट्रायंगल। तो बेस्ड ऑन दिस ये स्टेटमेंट लिख लो, कल इसका प्रूफ करेंगे, आज हमारा टाइम आउट हो गया, तो इसको प्रूफ करेंगे कल। ये स्टेटमेंट के लिए आज लिख लो और थोड़ा ये प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन दे दूंगा। ओके बाय।